So good morning, everybody. I would like to welcome Ashok Sharma sir and Rakesh ji. And as I can see, many of our students have also started joining. So without wasting our time, we should begin this session. So firstly, I would like to welcome Dr. Kirti Jain ma'am, who's the speaker of this sessions. So before starting, I should now introduce her to my students already participating or those who are participants in this sessions. I can see 28 participants are here. We'll introduce Dr. Kirti Jain ma'am. जैसे जैसे students will start joining, we will reintroduce her also to all these students. So Kirti Jain ma'am holds a PhD in statistics, or she is working as a professional faculty in IMT CDL Ghaziabad. Or today's session is fully um, dependent on I. Hello, am I audible? Sorry, my connection is dropping. Am I Yes, audible? Please yes, confirm. you are Okay. audible. हाँ. तो मैम प्लीज वेलकम, आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर कीर्ति जैन मैम, जो आज के सेशन में हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करेंगी. दिल शी विल आल्सो आंसर द क्वेश्चंस. So yes, Suraj is also responding. Viru is also responding. It means I am audible to every student. So let me begin this sessions. So Kirti Jain ma'am, very I would like to welcome you. कैसे हैं आप? Thank you, Nishi. I'm fine. How are you? I'm also good. Ma'am, I would please request you to please introduce yourself in your manner to my students, those who are participating in this session. Okay, sure, Nishi. So, Nishi, and to all the participants, very good morning. And very good morning to Ashok sir and Rakesh ji. So, I have done my master's in statistics in year 2004. And then I have done my PhD in statistics. So, if we talk about data analytics, the mother of data analytics is actually statistics. स्टैटिस्टिक्स मैं पीएचडी करने के बाद, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं हिंदी में भी Yes. बोलूं, तो डोंट वरी, आई विल बी इन बोथ द मोड. आई विल स्पीक इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो स्टैटिस्टिक्स में की है. स्टैटिस्टिक्स और डेटा एनालिटिक्स में हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा रिलेशन है. पीएचडी जब मैंने किया तो उसमें मेरा जो काम था दैट वाज टोटली इन प्योर स्टैटिस्टिक्स, तो डेटा एनालिसिस का एज सच बहुत यूज नहीं था. बट लेटर वंस आई कंप्लीटेड माय पीएचडी, तो मुझे डेटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर में बहुत इंटरेस्ट आया, जैसे एसपीएसएस, आर प्रोग्रामिंग, पाइथन. सो ये सारी चीज़ें मैंने सीखना शुरू किया. और उसके बाद मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट किए हैं. And I have worked on many different types of data sets, like pharmacy data, medical data, finance data, marketing data, HR data. So, as a data analyst, I got to know about different types of data sets. This is always an exploring field. तो आपकी learning कभी end नहीं होती है. आप हर बार एक नया data explore करने का आपको मौका मिलता है. So, apart from this, I also would like to tell you that मैंने अपनी मुझे लगभग 18 years का teaching experience है. So, I have taught in many different universities, prestigious universities like GD Goenka University and IIT University. And now I am with IMT Ghaziabad, IMT CDL Ghaziabad. So, Okay, this ma'am. is So short let us. intro. हाँ. So मैम, आपका इंट्रो सुनकर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है. और हम हिंदी में भी बोलेंगे. हाँ, जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हिंदी में बात कीजिए, तो हम हिंदी में बात करते हैं. और अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेशंस के क्वेश्चन आंसर्स को, कि हम क्या करें. अगर डेटा एनालिटिक्स अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त सोच रहे होंगे, एज अ स्टूडेंट अगर मैं सोचूं कि व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स. सी डेटा एनालिटिक्स आज जो प्रेजेंट मार्केट में अगर आप देखेंगे, तो हर छोटी बड़ी कंपनी, हर कंपनी डेटा का यूज कर रही है. सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डेटा क्या कोई नई चीज है जो अभी इन्वायरमेंट में आई है या अभी सुनने में आया है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. डेटा तो हमेशा से था. लाइक अगर हम बात करते हैं
अपने राजा महाराजाओं के टाइम में या फिर मुगल शासन में हर एरा में डेटा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस समय डेटा रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल था। जब कंप्यूटराइजेशन हुआ, इंटरनेट इतना फास्ट हुआ एंड एवरीवन इज यूजिंग इंटरनेट दीज डेज, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी है डिजिटली, वो बहुत इम्प्रूव हो गई। हम्म जैसे कि अगर हम लाइक 15 साल पहले की बात करते हैं या 15-20 साल पहले की बात करते हैं, तो एक छोटी सी पेन ड्राइव जो 256 MB की होती थी, उसकी कॉस्ट 1,000 रुपया होती थी और वो इंडिया में अवेलेबल भी नहीं थी। बट धीरे धीरे चीजें चेंज हुई। आज आपके पास जो पेन ड्राइव है, छोटी सी पेन ड्राइव होती है, वो टेराबाइट्स ऑफ डेटा सेव करती है। अगर हम बात करें लाइक क्लाउड सर्विसेज की, इतना इफिशियंट है क्लाउड सर्विसेज, आपको कहीं कोई डेटा अपने साथ कैरी करने की जरूरत ही नहीं है। एवरीथिंग इज सेव्ड ऑन क्लाउड्स, जैसे वन ड्राइव हुआ, आपका गूगल ड्राइव हुआ। ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप अपना डेटा आराम से सेव कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी, ठीक है, तो हम डेटा बहुत सारा इकट्ठा करने लग गए। बट अगर उस डेटा का हम प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे, ओके, अगर हम उस डेटा को प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं ले रहे हैं, तो दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। फाइन। हम्म वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो इसलिए आज के प्रेजेंट एरा में हम सभी लोग डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पर विश्वास रखते हैं। और लाइक अगर 5 साल पहले की बात करें या अभी प्रेजेंट की बात करें या हम फ्यूचर की बात करें, डेटा एनालिटिक्स ऐसा फील्ड है जिसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और हर कोई, इवन योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई, दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन डेटा। सो डेटा इज इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज पावर विच विल हेल्प यू टू मेक बेटर डिसीजंस। ओके मैम, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स को ये समझ आया होगा। इनिशियल स्टेज पर जब हम इस सेशन को आगे लेकर जाएं, तो हम चाहते हैं कि जो बेसिक्स हैं इस सेशन के, वो स्टूडेंट्स को क्लियर हो। तो ये जो पूरा सेशन है जो डेटा एनालिटिक्स पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, आई होप कि स्टूडेंट्स ये समझ गए होंगे। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम कि आई वांट कि आप अपना जर्नी शेयर करें, आपकी यात्रा कैसी रही इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स। निशी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैंने अपनी मास्टर्स भी स्टैटिस्टिक्स में किया है एंड पीएचडी भी किया है, तो हमेशा से मैं डेटा के टच में ही हूँ। और डेटा एनालिटिक्स ऐसा फील्ड है कि हर दिन कुछ नया, नई चीज मार्केट में आती है, तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है। आप देखिए, लाइक अगर इस समय भी हम देखें, टेराबाइट्स ऑफ डेटा इज प्रोड्यूस्ड एवरी डे। हर दिन हम्म टेराबाइट्स में डेटा आपका प्रोड्यूस होता है। अगर हम्म हम एक साल का एस्टिमेट देखें, तो डेटा कंजम्पशन वर्ल्ड में हो रहा है, वो आप समझिए 149 जेटाबाइट्स ऑफ डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। तो इतना सारा जब डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर आप इस फील्ड में जाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, चीज़ों को समझने की, सोचने की, लाइक ये क्यों है, ऐसा क्यों है। अब हम्म डेटा एनालिटिक्स करने से क्या फायदा होता है कि आप इंट्यूशन बेस्ड या एक्सपीरियंस बेस्ड बातें नहीं करते हैं, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बातें करते हैं। तो आपकी वैल्यू, आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको एक वैल्यू मिलती है, एक उनको सपोर्ट मिलता है। हम्म तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स लिया है, अब कैसे इसका यूटिलाइज होता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन राइजेस कि हाउ इज डेटा एनालिटिक्स बीइंग यूटिलाइज्ड across different industries, and ma'am please provide some specific examples of these applications in different multiple sectors like healthcare, finance, retail and manufacturing. हम्म। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो डेटा है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रोफेशनली, आप मतलब एजुकेटेड है तभी आप यूज कर रहे हैं। इवन जो छोटे शहर के लोग होते हैं, या अगर आप देखेंगे रेडी वाला, वो लोग भी डेटा एनालिसिस करते हैं। बट हाँ, उनका स्केल बहुत छोटा है, वो बहुत छोटी इंफॉर्मेशन पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं, नॉट ओनली बड़ी कंपनीज, अगर आप किसी स्टार्टअप में भी जाते हैं, तो वो लोग भी आजकल डेटा पर ही काम करते हैं। तो पहले मैं ये समझाना चाहती हूँ कि डेटा एनालिटिक्स कितने टाइप्स का होता है और इसमें क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज होता है।
तो सबसे हम्म पहले अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं डेटा एनालिटिक्स में, आपको आपका थोड़ा सा बेस और आपका माइंडसेट एनालिटिक होना चाहिए। अगर आपका लाइक ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है तभी आप डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं, या आपके पास मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स है तभी आप डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेटा एनालिटिक्स में बहुत सारे डोमेन्स हैं। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड भी है, साइंस बैकग्राउंड भी है, तो भी आप अगर थोड़ा बहुत भी अपने स्टैटिस्टिक्स का भी पढ़ा है तो दैट इज सफिशिएंट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। अब हम्म अगर हम फील्ड्स की बात करें कहाँ कहाँ डेटा एनालिटिक्स यूज होता है, तो ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ एनालिटिक्स यूज नहीं हो रहा है। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, जैसे कि निशी ने बोला, हेल्थ केयर में आपके जो स्कैन्स होते हैं, एमआरआईज होते हैं, एक्सरेज होते हैं, उनकी इमेज प्रोसेसिंग होती है। तो वो इमेज प्रोसेसिंग के लिए हम डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग टेक्निक्स का ही यूज करते हैं, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, ये सारी हम्म टेक्निक्स का यूज करते हैं। अब अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो आजकल आप देखते हैं कि जैसे गूगल है, अमेजोन है, यूट्यूब है, ये रिकमेंडेशंस देता है। जिस तरीके की आप वीडियो देख रहे हैं उसी तरीके के रिकमेंडेशंस आपको यूट्यूब प्रोवाइड करता है। अमेजोन हम्म पे आप जिस तरीके की चीजें ढूंढ रहे हैं खरीदने के लिए, उसी तरीके की चीजें आपको मिलती हम्म हैं। इवन एड्स जो आ रहे हैं आपके पास, आप यूट्यूब वीडियो वॉच कर रहे हैं, इन बिटवीन कोई ऐड आता है, वो ऐड भी आपके ही इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है। तो ये रिकमेंडेशन सिस्टम होता है विच इज कंप्लीटली बेस्ड हम्म, ऑन एनालिटिक्स। तो ये बड़ी बड़ी हाँ कंपनीज आपका पूरा पैटर्न स्टडी करते हैं और उस हिसाब से रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो मार्केटिंग में ये कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए बहुत यूजफुल है। जिसके बेसिस से आप, आई मीन, कस्टमर सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लाइक फाइनेंस में, तो आपका फाइनेंस में डेटा एनालिटिक्स का बहुत ज्यादा यूज है। आजकल आप देखते हैं कि पहले के टाइम में लोग इतने प्रो नहीं थे शेयर मार्केट वगैरह में, बट आजकल इतने सारे एप्स हो गए हैं जिन पे आप आराम से ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, बिकॉज ये सारे डेटा ड्रिवन हैं और ये आपको रिकमेंडेशंस देते हैं कि यू शुड इन्वेस्ट इन दिस शेयर, इन दैट शेयर। इस सब के बैकएंड में आपका डेटा एनालिटिक्स का ही यूज होता है, फाइनेंशियल एनालिटिक्स का। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर में बात करूं, अगर आप लोन लेने चाहते हो तो पूरा आपका प्रोफाइल स्टडी किया जाता है, आपका रिस्क एनालाइज किया जाता है, रिस्क फैक्टर एनालाइज किया जाता है, तो वहां पर भी आपका डेटा एनालिटिक्स का यूज होता है। अगर हम सप्लाई चेन की बात करें, जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल सप्लाई चेन का मैं दे सकती हूँ, जैसे कि कोविड के टाइम में जो इंडिया में वैक्सीनेशन का प्रोसेस हुआ, वैक्सीन का जो एक ड्यूरेशन था, लाइक बहुत सेंसिटिव था, लाइक यू कैन नॉट हम्म, कीप इट ओपन, यू हैव टू प्रिजर्व इट इन सर्टेन अंडर सर्टेन टेम्परेचर। तो इतने बड़े कंट्री में इतने लार्ज स्केल पर ये जो गवर्नमेंट की एक्टिविटी थी टू प्रोवाइड वैक्सीन्स टू एवरीवन इन द कंट्री, तो उस एक्सरसाइज में सप्लाई चेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और वहां पर भी एनालिटिक्स का ही यूज हुआ। अगर मैं फर्स्ट लॉकडाउन की बात करूं, तो जब इंडिया में कोविड के टाइम पे फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, तो उस समय गवर्नमेंट टुक सम टाइम टू प्रिडिक्ट। उनको है ना फ्यूचर प्रिडिक्ट करना था कि अगर हम लॉकडाउन खोलते हैं उसके बाद कितने कोविड के केसेस आएंगे, हम उनको कैसे मैनेज करेंगे। तो वो पूरा जो प्लानिंग था, लाइक हाउ मेनी हॉस्पिटल्स शुड बी देयर, हाउ मेनी बेड्स शुड बी देयर, व्हाट ऑल फैसिलिटीज वी रिक्वायर, दैट एवरीथिंग वाज कैलकुलेटेड यूजिंग एनालिटिक्स। तो हाँ आज तो के मैम लेकर आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर आई कैन सी now started asking also, विश्वास पूछ रहे हैं आप, एनालिटिक्स इज इट लिटिल डिफिकल्ट टू लर्न? नो, नॉट एट ऑल। देखिए, अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तब भी आप एनालिटिक्स सीख सकते हैं, क्योंकि एनालिटिक्स में जो बेसिक चीजें हैं, या मैं बोलना चाहूंगी कि जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली हैं। जैसे अगर हम आर प्रोग्रामिंग, पाइथन, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, तो ये लैंग्वेजेस इतनी सिंपल हैं कि अगर आपका कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है देन ऑल्सो यू कैन यूज दैम। पहली ओके। चीज। दूसरी चीज कि
अगर आप स्टैटिस्टिक्स या कॉमर्स पढ़े हुए हैं तो ऑब्वियसली नंबर से डील करना आपको आता है, तो आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है डेटा साइंस में जाना या डेटा एनालिटिक्स में जाना। तो अब चलिए, मैं तो यहाँ पर एक मिनट निशी, मैं एक थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ अप देना चाहती हूँ कि एनालिटिक्स कितने कितने टाइप्स की होती हैं और इनका क्या यूज है एक्चुअली। तो हम्म बेसिकली जब हम एनालिटिक्स की बात करते हैं तो 3 मेजर टाइप्स की एनालिटिक्स होती हैं। फर्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हमको बताता है कि पास्ट में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड हम्म इन द पास्ट। जैसे हम्म फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीमार होते हैं, ठीक है, आपकी तबीयत खराब है, सपोज आपको फीवर हो रहा है, कफ कोल्ड हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। तो हम्म डॉक्टर सबसे पहले आपके पास्ट में जाएगा, वो पूछेगा आपको कब से कितने दिन से फीवर हो रहा है, ठीक है, हम्म आपने क्या खाया था, बारिश में भीग गए थे या कुछ ठंडा खा लिया, या इस तरीके के क्वेश्चंस, या कोई इन्फेक्शन अगर है तो किस वजह से इन्फेक्शन है, कहाँ गए थे, इस तरीके के क्वेश्चंस डॉक्टर पूछता है, ठीक है। तो सेम चीज हम डेटा के साथ करते हैं। जब डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम डेटा के पास्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि डेटा के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम क्यों हम्म कर रहे हैं, बिकॉज हम क्या अजम्पशन मान के चलते हैं कि जो पास्ट में हुआ है, जो हम्म पैटर्न पास्ट में फॉलो हुआ है, वो फ्यूचर में भी होगा। ओके, ओके not exactly but similar kind of pattern will be followed in future। तो हम्म अगर मैं वापस डॉक्टर वाले एग्जाम्पल पे जाती हूँ, एक बार डॉक्टर ने पूछ लिया कि आपको आपका पास्ट क्या था, आपने क्या खाया, कहाँ गए, कब से प्रॉब्लम है, कितने दिन से प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, उसके बाद डॉक्टर आपकी बीमारी को प्रिडिक्ट करता है कि हो सकता है कि आपको वायरल हो गया है, ठीक है, हम्म या फिर आपको टाइफाइड हो गया है, या फिर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। मतलब आपकी सिम्टम्स आपके बेसिस पर डॉक्टर आपकी एक प्रॉब्लम को, एक डिजीज को डायग्नोज करता है, ठीक है। हम्म तो इसमें हमने वर्ड यूज किया डायग्नोज। सेम प्रिस्क्रिप्टिव एंड सॉरी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में एक छोटी सी एनालिटिक्स आती है, उसको हम डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स बोलते हैं। उसका पर्पस यही होता है कि टू आइडेंटिफाई कि क्या हुआ है ना। उसके बाद आपका आता है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। तो डॉक्टर ने जैसे प्रेडिक्ट किया आपको ये बीमारी है ना, सिमिलरली डेटा के बेसिस पर हम डेटा के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, या जिस एनवायरनमेंट का, जिस कंपनी का वो डेटा है, उस कंपनी के फ्यूचर के बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हम आजकल ईवी व्हीकल्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, सबसे पहले मैं टाटा का ही नाम लूंगी इंडिया में, तो उन्होंने 5 साल पहले एक विजन तैयार किया कि मार्केट में ईवी व्हीकल्स का क्या स्टेटस रहेगा, कितने व्हीकल्स लोग खरीदेंगे। तो ये पूरा एक एनालिटिक्स उन्होंने स्टडी किया और एक एम बनाया कि हमको 2024 तक इतने व्हीकल्स मार्केट में उतारने हैं, या फिर 2030 तक हमको इतने व्हीकल्स मार्केट में उतारने हैं, ठीक है। तो जो हमने एम बनाया है, ओके, दैट इज यूजिंग प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, उनसे हम फ्यूचर के लिए एक एम डिसाइड करते हैं, एक गोल डिसाइड करते हैं। एंड ओके, वंस सो इट इज कमिंग बैक। डिसाइडेड, एक सेकेंड निशी, लेट मी फिनिश दिस। हाँ सो हाँ हाँ वंस इट इज डिसाइडेड, तब उसके बाद अगर मैं वापस डॉक्टर वाले एग्जाम्पल पे जाती हूँ, तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का मतलब हुआ जब डॉक्टर आपकी मेडिसिन, मतलब आपकी डिजीज फाइंड करके आपको दवाइयां या प्रिकॉशंस प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। सेम हम हम्म प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में करते हैं। यहाँ पर भी प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हमारे पास एक पाथ होता है जिसकी हेल्प से हम जो एम्स हमने फ्यूचर के लिए प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में बनाए हैं, दैट कैन बी सेटिस्फाइड, ठीक है। सो ये ओके प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का एक यूज है। यस ओके निश। मैम, सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टूडेंट इज आस्किंग अबाउट, अभी आपने बताया था कि डेटा एनालिटिक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स आर देयर एंड कैन वी अट्रैक्ट कस्टमर्स टुवर्ड योर प्रोडक्ट थ्रू दिस। यस डेफिनेटली, सी मेजर टाइप की डेटा एनालिटिक्स मैंने आपको बता दिए कि 3 ही हैं, हम्म डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स।
तो डेफिनेटली आप हम्म अपने कस्टमर्स को, जैसे मैंने आपको बताया सेल्स एंड मार्केटिंग में हम कस्टमर सेगमेंटेशन का यूज करते हैं, जिसमें हम, बिकॉज आजकल के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पहले अगर हम हम्म एक चैनल की भी बात करें तो एक दूरदर्शन चैनल होता था, बट आज आप देखो टीवी पर कितने चैनल्स हैं, एंड नाउ वी आर इन द एरा वेयर वी आर वॉचिंग टीवी ऑन इंटरनेट, ओटीटी इज देयर। हम्म तो बहुत सारे मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो उस कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए कस्टमर्स को आप पर्सनलाइज सर्विस अगर देना चाहते हैं, तो आपको मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट बास्केट एनालिसिस, इस तरीके की टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, वो सब आप एनालिटिक्स की हेल्प से आराम से कर सकते हैं। ओके। यहाँ पर मैम गोविंद पूछ रहे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है कि प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस। यस, बहुत अच्छा इनमें क्वेश्चन है अंतर ये, क्या है? गोविंद का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, डेटा एनालिटिक्स का प्रोफाइल अगर हम देखें तो उसमें वो बेसिकली काम करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में। जो डेटा है हम्म। उसको क्लीन करना, प्री प्रोसेसिंग करना, उसका डेटा विजुअलाइजेशन करना, जैसे आपका आर हो गया, पाइथन हो गया, या पावर बीआई हो गया, या फिर टेबल्यू हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से आप डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये विजुअलाइजेशन का काम है, और जो प्रेजेंट डेटा हमारे पास है उसको स्टडी करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स यूज करते हैं। और जो डेटा एनालिस्ट का काम है वो बेसिकली यहीं तक ही सीमित रहता है। बट डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक स्टेप आगे हैं। वो काम करते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स पर एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स पर। वो मॉडल्स डिजाइन करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल, न्यूरल नेटवर्क मॉडल, डीप लर्निंग मॉडल। ऐसे मॉडल्स बनाए जाते हैं जो आपका हर तरीके के डेटा को हैंडल कर सकें। तो डेटा साइंस एक, यू कैन से, अपग्रेड वर्जन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ओके मैम, इसी से जुड़ा हुआ तीसरा जो मेरा क्वेश्चन है वो यही है कि डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स ये भी अलग अलग चीज होती है क्या? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी निशी। देखिए, डेटा एनालिटिक्स का मतलब हुआ, सिर्फ हम डेटा की बात कर रहे हैं। अब डेटा तो हर फील्ड में हो सकता है। इवन अगर जब इसरो ने चंद्रयान भेजा है, मंगलयान या चंद्रयान जो भी इसरो भेज रही है, वहां से भी हमें डेटा मिल रहा है। अगर आप इसरो की साइट पर जाके देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ जहाँ पर चंद्रयान और मंगलयान से डेटा आ रहा है और आप उस डेटा पर काम कर रहे हैं। तो हम्म डेटा तो हर फील्ड में है, चाहे आप फार्मेसी की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, आप सिंपल आप इकोनॉमिक्स की बात करें, आप फिजिक्स की बात करें, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम्म हम उस डेटा को पर्टिकुलरली बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, टू ग्रो आवर बिजनेस, टू मेक बेटर डिसीजन फॉर बिजनेस, ठीक है, तो हम्म टेक्निक्स वही हैं जो डेटा एनालिटिक्स में हम पढ़ रहे हैं, वही टेक्निक्स बिजनेस एनालिटिक्स में होती हैं। ओनली आपका डोमेन चेंज हो जाता है। जैसे किस तरीके के बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, उस हिसाब वो डेटा हम लेते हैं और उसी के ऊपर हम एनालिटिक्स लगाते हैं। तो जब आप ओके एनालिटिक्स का यूज पर्टिकुलरली बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो वो बिजनेस एनालिटिक्स हो जाता है। ओके मैम, यहाँ पर अगला सवाल सूरज ने पूछा है। सूरज इज आस्किंग कि इन द डोमेन ऑफ डेटा एनालिटिक्स वी हैव टू लर्न डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस, राइट? तो विच लैंग्वेज वी शुड स्टडी? ओके, तो जैसे मैंने अभी सूरज बताया कि आर और पाइथन ये दो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो आपको डेटा एनालिटिक्स फील्ड में आपको अगर करियर बनाना है तो आपको सीखनी चाहिए। ये हम्म बहुत सिंपल लैंग्वेजेस हैं। अगर आपको सपोज फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो आपको स्क्वायर रूट ही लिखना है। अगर आप और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हैं, जैसे जावा या सी प्लस प्लस, वो लंबे लंबे कोड्स होते हैं, बहुत बहुत लंबे होते हैं, और वो प्रॉपरली आपको सीखने के लिए आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है। बट आर और पाइथन ऐसी लैंग्वेज है वो स्पेसिफिकली बनी ही डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट के लिए हैं। और इन लोग, जिन लोगों का प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, वो भी ये लैंग्वेजेस आसानी से सीख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब आपको इनका लाइसेंस खरीदने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना, कोई लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं है। एनी वन कैन यूज दीज टू लैंग्वेजेस। इसके अलावा
ये तो लैंग्वेजेस की बात हो गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। बट अगर आप अपना डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स भी सीखने चाहिए, जैसे कि एक्सेल में भी आप बहुत सुंदर डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, एडवांस एक्सेल आप सीख सकते हैं, पावर बीआई आप सीख सकते हैं, इसके अलावा हम्म। टैबल्यू आप सीख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको आर सीख लिया आपने तो पाइथन सीखना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। पाइथन सीख लिया तो आर भी आप इजीली सीख सकते हो। सिमिलरली पावर बीआई सीख लिया तो टैबल्यू आप आराम से सीख सकते हो, टैबल्यू सीख लिया तो पावर बीआई भी आप सीख सकते हो। तो ये चीजें बहुत सिमिलर हैं और बहुत इजी हैं। बट हाँ, ऑफ कोर्स आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा प्रॉपरली। कोई भी चीज हम नई सीखते हैं तो हमेशा आपको टाइम तो लगाना ही पड़ता है। और गुड थिंग इज दिस, इन्हीं में बहुत सारे पैकेजेस आते हैं, हर दिन नए पैकेजेस पब्लिश होते हैं। सीखने सीखते रहना पड़ेगा। नहीं, ये निशी। इस सवाल की तरफ तो वेदा इज आस्किंग कि मैम कैन वी लर्न दैट, हाँ, सो कैन वी लर्न डेटा एनालिटिक्स विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज? दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय वेदा। हाँ देखो वेदांग, मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जरूरी है अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको आर या पाइथन तो सीखना जरूरी है, और एसक्यूएल भी। बट अगेन आई विल से कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये लैंग्वेजेस बहुत इजी हैं, आप आराम से इनको सीख सकते हो। मैम अब सवाल अगला मेरी तरफ से ये होगा कि व्हाट आर द स्किल्स एंड टूल्स वी यू हैव फाउंड आउट मोस्ट वैल्यूएबल फॉर डेटा एनालिटिक्स, और वन शुड मींस लर्न टू मेक करियर इन डेटा एनालिटिक्स? देखिए, अगर आप डेटा एनालिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा इंक्रीज करना पड़ेगा और हमेशा क्यूरियस रहना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। इसके अलावा आपको टीम वर्क आना चाहिए कि टीम में कैसे काम किया जाता है, टीम वर्क सीखना चाहिए, कोलैबोरेशन सीखना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग सीखनी चाहिए, कम्युनिकेटिव स्किल्स सीखनी चाहिए। ठीक है, और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में ये तो नहीं बोलूंगी कि बहुत डीप सीखना चाहिए, क्योंकि आपको मास्टर्स नहीं करना है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में, बट बेसिक्स आपको आने चाहिए। ठीक है, ये तो आपके एग्जैक्ट। सॉफ्ट टूल्स हो गए। इसके अलावा मैथमेटिक्स तो हार्ड स्किल है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा आपको, अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताऊं तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, पाइथन, आर, पावर बीआई, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए एडवांस एक्सेल, ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। तो इसके लिए अगर आप जैसे अगर यूट्यूब पर जाते हैं या कहीं कोई ऑनलाइन कोर्स करते हैं तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं प्रॉपरली इस डोमेन में, तो आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूट से प्रॉपरली एक डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहिए। बिकॉज वहां पर एक आपको फुल पैकेज मिलता है। आप सिर्फ आर सीख लिया या पाइथन सीख लिया, दैट इज नॉट सफिशिएंट। इफ यू वांट टू मेक योर करियर in analytics, okay, then you should have proper diploma, degree or certification from some good institutes। वहां पर आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है आपका। इस एनवायरनमेंट में कैसे सरवाइव करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न। Okay, so ma'am, you are saying कि students should go rather than for a temporary solution, they should go for a permanent solution. They should get the degree for a very renowned platform. So IMT CGL Ghaziabad is one of them. So and you are working as a faculty over there. So I would request you to please tell our students, share to our students कि what IMT Ghaziabad is offering to the students. यस, आईएमटी गाजियाबाद में दो तरीके के कोर्सेज हैं, पीजी डिप्लोमास हैं। एक तो आपका फ्रेशर्स के लिए 2 ईयर कोर्स है, जिसमें बिजनेस एनालिटिक्स में आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे आपका डेटा साइंस, डेटा माइनिंग फॉर बिजनेस एनालिटिक्स। इसके अलावा आप रिस्क एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, इस तरीके के कोर्सेज आप सीखेंगे।
और जो लोग एक्सपीरियंस है, लाइक एटलीस्ट 5 ईयर का उनका एक्सपीरियंस है, तो वो 15 मंथ्स का पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव्स के लिए हैं वो स्पेसिफिकली। इलेक्टिव्स उनके यही रहेंगे, बट वो अपने पर्टिकुलर डोमेन इंडस्ट्री के हिसाब से अपने इलेक्टिव्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई फाइनेंस में काम कर रहा है तो रिस्क एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, इस तरीके के सब्जेक्ट्स इलेक्टिव्स ले सकता है। अगर कोई एचआर में काम कर रहा है तो एचआर एनालिटिक्स ले सकता है। तो अपने पर्टिकुलर डोमेन के हिसाब से, या फिर अब इफ दे वांट टू मेक और शिफ्ट देयर करियर फ्रॉम सम डोमेन, सो वो भी आप कर सकते हो। अपने करियर को शिफ्ट करने के लिए भी आप बिजनेस एनालिटिक्स की स्पेशलाइजेशन कोर्सेस ले सकते हैं। तो होप स्टूडेंट्स वुड हैव, मतलब मैम ने जो समझाया आपको समझ आ गया होगा। इफ यू आर क्वाइट इंटरेस्टेड तो आप आईएमटी सीजीएल गाजियाबाद की वेबसाइट पर भी जाकर क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, उनके हेल्पलाइन नंबर से भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, और यू कैन आस्क मेल पर भी आप उनसे पूछ सकते हैं, दे आर अवेलेबल। और जो इंफॉर्मेशन होगा वो राकेश जी अभी ये वाले सेशन के थ्रू इस ग्रुप में डाल देंगे, यहाँ पर जहाँ पर आप बात कर रहे हैं, जहाँ अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आप आगे फॉलो वहां से ले सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम वीरू। ही इज आस्किंग फ्रॉम अ बिजनेस perspective that how can we find out the data of our customer, that what data he is currently searching for on his app? तो देखिए, ऐसा है अच्छा कि क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप रैंडमली आपका कस्टमर क्या सेलेक्ट कर रहा है आपको मिलेगा। आपको पहले पूरा डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। आप जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखेंगे और कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे हम डेटा को एनालाइज करते हैं, एडिट करते हैं, कहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करना हम्म। है। पूरा इसका एनालिटिक्स होता है। हम्म। ऐसे हम रैंडमली नहीं कि एक कस्टमर है और उसका हम ग्रोथ पाथ या परचेजिंग पैटर्न आइडेंटिफाई करें, दैट इज नॉट पॉसिबल। वैसे भी जो डेटा है वो बल्क पे काम करता है। डेटा के लिए हमेशा क्वांटिटेटिव वर्ड यूज किया जाता है। जब जहाँ क्वांटिटेटिव डेटा होता है वहाँ ही एनालिटिक्स प्रॉपरली लग सकती है। बट आजकल हम एनएलपी वगैरह का भी यूज करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। तो उसके लिए आपके पास सैंपल होना चाहिए। जब तक आपके पास सैंपल नहीं है सफिशिएंट, आप एनालिटिक्स नहीं लगा सकते। अब एक दो केसेस के लिए तो आप वैसे ही कस्टमर का प्रोफाइल आप चेक करिए, उससे सफिशिएंट, दैट इज सफिशिएंट। बट एनालिटिक्स के लिए आपको डेटा लार्ज होना चाहिए। Okay. So, ma'am, Govind is asking that, ma'am, should we aim for good placement in these fields? Means, after the student know what is data हाँ, analyst, and after getting a degree, now they are asking for that how will they get good placements in this particular field? तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप अच्छी जगह से, किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉपरली आप डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स करिए डेटा एनालिटिक्स में, बिजनेस एनालिटिक्स में। वहां से ही आपको अपने आप प्लेसमेंट के पाथ मिलते हैं। तो अगर आप रैंडमली बस ऑनलाइन कुछ कोर्सेज कर लेंगे तो वो लर्निंग के लिए तो सफिशिएंट है। आपने सीख लिया, आर सीख लिया, पाइथन सीख लिया, बहुत सारे मूक कोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट पर। बट वो आपको पूरा कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा, आपकी ग्रूमिंग नहीं होगी। तो उसके लिए आप प्रॉपरली किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप ज्वाइन करिए कोर्स, 6 मंथ्स का सर्टिफिकेशन कोर्स या डिप्लोमा कोर्स, जो भी आपको के लिए सुटेबल है। तो अपने आप आपका करियर पाथ उसमें ग्रो करेगा। बट अगर आपको सिर्फ सीखना है आर पाइथन, तो कोई भी इंटरनेट पे बहुत सारे मूक कोर्सेज हैं जो आप मतलब उन पर जा सकते हैं और अपने सेल्फ पेस के अकॉर्डिंग सीख सकते हो। Okay, ma'am. So, Govind is asking कि he is doing a course from EY in data analytics. Is it good? EY इज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, बट वो आपको फिर डेटा एनालिटिक्स का ही कोर्स है। हाँ, दैट इज गुड। आप उसमें आर, पाइथन और बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये सभी सीख पा रहे हैं, तो दैट इज अ गुड कोर्स। So, next question is from Roshan Ji. Roshan asking that what depth of knowledge would one need in data analytics to do well in product management? प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसमें डेटा एनालिटिक्स ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। तो ऑब्वियसली हम्म।
प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए अगर आप मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास अगर डेटा है, आप डेटा एनालिटिक्स का यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी इसमें बहुत ज्यादा एडवांस एनालिटिक्स की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट अगर आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स भी सीख लिया तो वो भी काफी हद तक आपको हेल्प करेगा। आप उसके बेसिस पे आई मीन अगर आप डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमेशा चांसेस आपके बेटर रहते हैं कि आपका डिसीजन करेक्ट होगा। और ऑब्वियसली अगर डिसीजन करेक्ट है तो डिसीजन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर रेवेन्यूज प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डेटा ड्रिवन मैम आपने डिसीजन इसीलिए की जाती है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पर हम काम कर रहे हैं। अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम काम करते हैं तो प्रेडिक्शंस करना इजी है। अगर आप प्रेडिक्शंस ठीक कर पा रहे हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। और अगर आप करेक्ट डिसीजंस ले पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और योर बिजनेस विल ग्रो। मैम अभी आपने थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से समझाया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एनालिस्ट क्या होते हैं। नाउ आई वुड लव टू नो दैट हाउ ईच टाइप इज यूज्ड टू डिराइव इनसाइट्स एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। देखिए, वो पर्टिकुलरली डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप हम्म। फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो फाइनेंस का जो डेटा है उसमें रिस्क एनालिसिस बहुत होता है। ठीक है, कि अगर जैसे सपोज यू आर वर्किंग इन इंश्योरेंस और बैंकिंग, तो किसी को लोन देना है या किसी को पॉलिसी देनी है, कितना प्रीमियम रखना है। अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं, आप देख दे लाइक आजकल जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जब आप पॉलिसी खरीदने जाते हैं तो वो आपकी एज, आपके बहुत सारे अदर फैक्टर्स कि आप कौन सी आपको डिजीज है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उससे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, हम्म। आपके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को शुगर बीपी इस तरीके की प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर है तो आपका प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशंस ऐसे हवा में नहीं होती हैं, इस सबके लिए एनालिटिक्स का यूज किया जाता है। अगर मैं अब बात करती हूँ लोन का, क्रेडिट कार्ड का, ठीक है, क्रेडिट कार्ड आजकल लोग खरीद लेते हैं बैंक से या लोन लेते हैं, होम लोन, कार लोन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन। तो बैंक ऐसे ही किसी को आंख बंद करके लोन नहीं देती है। बैंक पूरा आपका प्रोफाइल एनालाइज करती है, आपका रिस्क एनालिटिक्स का यूज करके आपका स्कोर कैलकुलेट किया जाता है कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द or you will able to return your loan amount in future। उसके बेसिस पर ही वो आपको लोन का अमाउंट डिसाइड करते हैं कि कितना लोन दिया जा सकता है आपको और कितने टेन्योर के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, हेल्थ केयर में अभी मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ रेनफोर्समेंट लर्निंग का। मशीन लर्निंग में तीन तरीके की टेक्निक्स होती हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो एक अभी आजकल आप देख सकते हो कि कैंसर का जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है वो कीमोथेरेपी होता है। बट कीमोथेरेपी में क्या होता है कि आपके जो गुड सेल्स होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। मतलब जो आपके इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको डैमेज करने के लिए या खत्म करने के लिए हम कीमोथेरेपी की जाती है। बट उसके साथ साथ आपके जो गुड सेल्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो टू हम्म। ओवरकम दिस प्रॉब्लम टैबलेट के साइज के रोबोट्स बनाए गए हैं जो आपके रिइंफोर्समेंट लर्निंग पर काम करते हैं। और जब ये आपकी बॉडी में वेन्स ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू इंजेक्ट किए जाते हैं तो इनका क्या रोल होता है कि ये सेंसर बेस्ड होते हैं। जब हम्म। वहां पर हमारे इन्फेक्टेड टिश्यूज होते हैं या सेल्स होते हैं, वहां का पीएच वैल्यू हाई होता है एज कंपेयर टू गुड सेल्स। तो ये क्या करता है, जब वो रोबोट आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो जहां इन्फेक्टेड एरिया है, जहां आपके कैंसेरियस सेल्स हैं, वहां पर क्योंकि पीएच वैल्यू हाई है तो ये रोबोट का जो माउथ है वहां खुलेगा और वो जो कीमोथेरेपी की मेडिसिन जो हम यूज कर रहे हैं ये बैड सेल्स को रिमूव करने के लिए, बस उसी एरिया में ये रिलीज करेगा। और बाकी की जो आपको हेल्दी सेल्स हैं
वो अनअफेक्टेड रहेंगी। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग एनालिटिक्स। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स के अलावा भी हम बहुत कुछ चीजें हैं एनालिटिक्स में। तो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग एनालिटिक्स इन हेल्थ केयर। अभी हेल्थ केयर में आपने सुना होगा रोबोटिक्स सर्जरीज हो रही हैं। ठीक है, तो हम्म। रोबोटिक्स को जो ट्रेन किया जा रहा है, उस ट्रेनिंग के लिए भी हम डेटा की हेल्प लेते हैं, जिसमें हम डीप लर्निंग का यूज करते हैं, न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं। न्यूरल नेटवर्क इज द बेस फॉर डीप लर्निंग। Okay, so ma'am, coming to our next question, Deepak is asking that he wants to start his journey in machine learning. So, what kind of math he should learn, and he's familiar with calculus and algebra. अगर आप कैलकुलस और अलजेब्रा से फैमिलियर हैं तो दैट इज सफिशिएंट। Okay, Hmm. calculus and algebra, if you learn, you know these two domains of mathematics, that is quite sufficient for machine learning. और अगर आप थोड़ा बहुत कुछ करना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स भी सीख सकते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग में जो हम एल्गोरिदम्स यूज करते हैं उसमें आपका अलजेब्रा का यूज होता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत आपका स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, और ऑफ कोर्स Okay. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो आपको सीखनी पड़ेगी। And now, ma'am, Vipin is asking to suggest you some good organizations for doing data analytics course, as he's asking an expert about it. So, ma'am, please answer. तो गुड ऑर्गेनाइजेशन में तो मैं सबसे पहले आईएमटी सीडीएल का I ही am. बोलूंगी क्योंकि Hmm. आईएमटी सीडीएल में हमारे यहाँ, मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया कि हम बिजनेस एनालिटिक्स एंड आईटी में स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आप डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, रिस्क एनालिटिक्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स, ये सारे कोर्सेज आप सीखते हैं। ठीक है, Okay. और इसके अलावा ये तो स्पेशलाइजेशन कोर्स है, बट इसके अलावा अगर जब आप पीजी डिप्लोमा पूरा कंप्लीट करेंगे तो बहुत सारी अदर लर्निंग्स होंगी। आपको बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी सिखाया जाएगा, उसके अलावा आपको जर्नल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, बेसिक्स ऑफ एचआर, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तो ये एक पूरा कंप्लीट पैकेज है जो सिर्फ डेटा एनालिसिस के लिए यूजफुल नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यूजफुल है। आप अपना पूरा करियर कैसे ग्रो करेंगे, बिकॉज डेटा एनालिस्ट आप स्टार्टिंग, दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ योर करियर, बट आपको एक टाइम के बाद तो मैनेजर बनना पड़ेगा ना। तो मैनेजर के लिए जो जो स्किल्स चाहिए वो सारे स्किल्स आप इस कोर्स से सीख सकते So Harsh is asking us ki if I'm thinking of a startup in a new domain, how data analytics can help him. हैं। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? हर्ष पूछ रहे हैं कि if I'm thinking of a startup in a new domain, तो how data analytics can help. ओके, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप अगर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है होगा आपके लिए कि आप किस तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च करें। तो किस तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके लिए आपको एक पूरा मार्केट रिसर्च का ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा। आपको एरियाज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि किस किस एरिया में आप काम करना चाहते हैं, क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। उसके लिए आप पूरा प्रॉपर मार्केट रिसर्च के थ्रू सर्वे करेंगे, आप डेटा कलेक्ट करेंगे, उस डेटा का एनालिसिस करेंगे। तो वहाँ ऑब्वियसली डेटा एनालिटिक्स का यूज आ गया। किसी भी तरीके की आप रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड रिसर्च है या आपके जॉब से रिलेटेड रिसर्च है, हमेशा डेटा एनालिसिस आपको करना ही पड़ता है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा एनालिटिक्स आप मेनली तो हम क्वांटिटेटिव डेटा का करते हैं, बट आजकल एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जिसकी हेल्प से आप इवन क्वालिटेटिव डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, कोई भी आप स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको सेकेंडरी और प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना चाहिए उस एरिया का, उस पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड, और उसका प्रॉपर मार्केट रिसर्च सर्वे करना चाहिए। जो आपके पास डेटा आता है उसका आप एनालिसिस करिए प्रॉपरली, फिर आप कुछ मॉडल्स डेवलप कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, और अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर बिजनेस। ओके, सो यहाँ पर स्वाति ने पूछा, स्वाति ने शेयर किया that she has already done 2 years PGDM from IMT CDL and working with EXL as lead assistant manager in F&A operations. Is there any certificate or recommended course from IMT CDL for further growth? Yes, yes, definitely. We are having professional certification courses which you can opt according to your specialization.
Okay. So, and Shubham is also asking, so Shubham, let me answer this question. How can we get the recording of this session? आप अपनी Gmail से जिससे आपने रजिस्टर किया होगा वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड सेकेंडली, इफ यू वांट टू लिसन द होल सेशन, तो आप YouTube, यानी कि जो ऑफिशियल YouTube है IMT सीरियल गाजियाबाद का, हर सेशन वेबिनार जितने भी सारे होते हैं, नॉट ओनली दिस वेबिनार, प्रीवियस वेबिनार्स जो कंडक्ट हुए हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी शुभम आपको उनके YouTube अकाउंट पर मिल जाएगी. तो यू कैन सर्च IMT CTL and you will get the recording of those sessions and this session as well. So ma'am, Govind is asking, is there any scope for good opportunity in London if I try to move next year in this field? मैम इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स की बात करें तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए. बहुत अच्छी है। देखिए ऐसा है कि इंडिया में हमेशा से लेबर जो है वो बहुत चीप रही है, तो आप जितने भी बड़े कंट्रीज में जाएंगे, जर्मनी में, या फिर आप अमेरिका जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, तो वहां पर हमेशा लोगों की कमी ही है ना। और एनालिटिक्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एनालिटिक्स वो लोग ही कर सकते हैं जिनका एनालिटिकल माइंड है, क्यूरियोसिटी है टू लर्न, टू एक्सप्लोर। तो अगर आपके पास वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है, तो डेफिनेटली you can go anywhere in the globe and you will get good opportunities. And also I can say, like, the salary and packages in this domain is having no limits. आप जैसा परफॉर्म करेंगे, जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे, मे बी आपको इनिशियली एक स्टैंडर्ड पैकेज पे जॉब मिल रहा है, बट जैसे आप एंटर करते हैं और डेटा पर काम करना शुरू करते हैं और अपना पोटेंशियल कंपनी को शो करते हैं, आपकी सैलरी में जो ग्रोथ होगी वो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आप देखेंगे। ठीक है, तो सो हर स्टूडेंट्स, जगह, हर कंट्री में डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट की बहुत डिमांड है। एग्जैक्टली. तो स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू वंस अगेन कि IMT सीरियल गाजियाबाद इस वाली इसमें बहुत ज्यादा फिट बैठती है. इस अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज भी IMT सीरियल गाजियाबाद करवा रहा है और बहुत ही कम दामों में करवा रहा है. इफ यू वांट टू डू अ डिग्री फ्रॉम अ रिनाउंड इंस्टीट्यूट बट योर बजट इज टू लो, तो आप किफायती अगर चाहते हैं कि आप डिग्री भी कर लें और एक रिनाउंड आपके साथ टैग भी जुड़ जाए, तो IMT सीरियल आई थिंक इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन ऑप्ट फॉर. एंड आप डेफिनेटली आप विजिट करिएगा उनकी वेबसाइट को. वहां पे आपको, अगर आप डेटा एनालिस्ट के साथ साथ और भी कोर्सेज करना चाहते हैं, वहां पे डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. मैम, आपने भी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से बताया कि कॉमन करियर पाथ्स क्या हो सकते हैं डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में. आई नाउ वांट टू नो व्हाट आर द स्किल्स और क्वालिफिकेशन विच आर टिपिकली रिक्वायर्ड फॉर ऑल दीज रोल्स. देखिए बैचलर्स डिग्री होना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, आप अगर इवन अब आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो भी आप अपना करियर डेटा एज ए डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, आपको अपना माइंडसेट जो है वो एनालिटिकल बनाना पड़ेगा और हमेशा लर्निंग पाथ पे रहना पड़ेगा। नई नई चीजें एक्सप्लोर करिए। जो भी लोग अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको ना लेटेस्ट ट्रेंड मार्केट में क्या है, उन वो अपडेटेड, मतलब उनसे आपको अपडेटेड रहना है। आपको देखना है कि क्या मार्केट में नया आ रहा है। ठीक है, और उसको साथ के साथ सीखना भी है। ऐसा नहीं कि आपने लॉन्ग बैक कोई कोर्स किया और वो खत्म। आप कंटिन्यूअस लर्निंग पाथ पर रहिए। तो जो भी नई चीज मार्केट में आ रही है आप वो सीखिए और हमेशा आप अपने आप को अपडेट करते रहिए। तो यही चीजें हैं। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं कि आपका बीटेक या साइंस बैकग्राउंड है तभी आप डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। ओके. कॉमर्स, आर्ट्स, कोई मैनेजमेंट, कोई भी आपका फील्ड है, इट डजेंट मैटर कि आप का प्रीवियस फील्ड क्या है, बट ऑफ कोर्स बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। Okay. So, Puneet ji is asking that is it online or offline? तो पुनीत जी, let me answer your question. इसके साथ साथ मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूंगी. सी, इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई डोंट नो वेदर यू आर ऑन नोट, बट इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो भी आप IMT सीरियल गाजियाबाद से घर बैठे ऑनलाइन अपने कोर्सेज कर सकते हैं. आप अपना काम भी परस्यू कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास एक डिग्री होना चाहिए स्पेसिफिक फील्ड में या फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और आप अगर जैसा मैम ने बोला कि आप स्विच करना चाहते हैं कि आपको अपना स्ट्रीम बदलना है,
तो आप डेफिनेटली ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही मिनिमम जो फीस है, आप फीस स्ट्रक्चर जाके वेबसाइट पर देख सकते हैं, वहां से आपको ये मैं बता सकती हूँ कि इफ कहीं वो डिग्री 6 लाख 7 लाख या आपके बजट के बाहर जा रही है, तो IMT CDL गाजियाबाद आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप उसको प्रीमियम रेंज में आप अपने पॉकेट के अकॉर्डिंगली उसको बिल्कुल बेयर कर सकते हैं, बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप उनकी वेबसाइट पर जरूर जाइए और जाकर विजिट करिए। ओके, निशी, सो मैं यहाँ रोहित। पे ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे पुनीत जी का क्वेश्चन है कि ये ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, तो ये हाँ। जो कोर्स है हमारा, ये ऑनलाइन ही है। बट टाइम टू टाइम हम कुछ वर्कशॉप्स कराते रहते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी देते हैं बच्चों को, जिसके लिए हम कभी कभी वंस इन अ वाइल कैंपस में बुलाकर उनको ट्रेनिंग्स देते हैं। बट जो ओवरऑल कंटेंट है और जो थीम है वो ऑनलाइन ही है, बिकॉज हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूजुअली इंडस्ट्री में अच्छी अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, अपना करियर में कुछ एडवांसमेंट के लिए या प्रमोशंस के लिए वो ये कोर्स करते हैं। तो जो आपका कोर्स है वो बेसिकली ऑनलाइन ऑडियंस के लिए है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए ही है। Okay, so Rohit is asking, ma'am, is there any placement cell in IMT CDL? IMT CDL में जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर वही लोग ज्वाइन करते हैं जो ऑलरेडी प्लेस्ड हैं प्रमोशन के लिए या करियर स्विच करने के लिए। तो एज सच प्लेसमेंट सेल नहीं है, लेकिन एक बार आप जब अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ, तो हमारा एक एलुमनाई पोर्टल है जिसमें 35,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी हमारे इंस्टीट्यूट के एल्यूमिनाइज हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पर हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। तो जब वंस यू कंप्लीट योर डिग्री, योर डिप्लोमा फ्रॉम हेयर, आप उसके बाद उस एल्यूमिनाई पोर्टल के मेंबर बन सकते हैं, एल्यूमिनाई ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं और अपने आप नेटवर्किंग करते हैं, अपने आप अपने डोमेन स्पेसिफिक लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं और अपॉर्चुनिटीज फिर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज यू विल गेट ओवर देयर। Okay, okay. So, ma'am, Vipin is asking that will IMT provide job-oriented data analytics course? यस यस, ये सारे जो हमारे कोर्सेज हैं वो जॉब ओरिएंटेड ही हैं, इंडस्ट्री लिंक्ड हैं, और जो भी लेटेस्ट इंडस्ट्री में आता है हम अपना जो कोर्स कंटेंट है वो इंडस्ट्री लिंक्ड ही रखते हैं, और जो भी लेटेस्ट इंडस्ट्री में आता है हम उसी के अकॉर्डिंग अपने कोर्स को रिवैम्प करते हैं और रिवाइज करते रहते हैं। ओके मैम, तो ये ऑनलाइन कंटेंट की बात चल रही है, तो मेरा अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, दैट व्हाट स्टेप शुड समवन टेक टू स्टार्ट अ करियर इन डेटा एनालिटिक्स, एंड इज इट एसेंशियल टू एनरोल इन प्रोफेशनल कोर्सेज एंड अटेंड लाइव क्लासेस, और इट इज सफिशिएंट टू रिलाई ऑन ऑनलाइन कंटेंट ओनली? निशी, मैं इसका जवाब ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि अगर आपको कुछ बस सिर्फ छोटा मोटा कुछ सीखना है, आर सीख लिया सिर्फ या पाइथन सीख लिया, तो आप ऑनलाइन मूक कोर्सेज कर सकते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक सीख ली, मशीन लर्निंग का एक कोई एल्गोरिदम सीख लिया, तो उसके लिए ये सफिशिएंट है। बट अगर आप प्रॉपरली अपना करियर बनाना चाहते हैं इस डोमेन में, बिजनेस एनालिटिक्स में या डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, तो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, डिग्री ये होना जरूरी है। विदाउट सर्टिफिकेशन एंड प्रॉपर डिप्लोमा डिग्री आपको कोई जॉब नहीं देगा। अगर जॉब आपको चाहिए, अपना करियर प्रॉपरली बनाना है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक सम डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेशन फ्रॉम सम गुड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जैसे कि मैम ने बोला, तो आई वुड कोरिलेटेड विद अ वेरी शॉर्ट एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको कुछ खाने जाना है या घूमने जाना है, आप अपनी कार ड्राइव करके खुद ले जा सकते हैं, बट इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू अ डेस्टिनेशन, आपको कहीं लंबा जाना है, देन व्हाट यू डू, यू हायर अ वेरी गुड प्रोफेशनल ड्राइवर, एंड इट इज द ओनली वे, एंड इट इज अ प्रोफेशनल वे। तो मैम वही कह रही है कि अगर आपको लंबा इसमें अपना करियर परस्यू करना है, तो यू शुड गो फॉर अ वेरी गुड डिग्री फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, इंस्टीट्यूट एज वेल। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस पूरे सेशन में ओवरऑल हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ने भी काफी ज्यादा इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाया, अपनी क्वेरीज आपसे पूछी, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, यू आर डीलिंग डे टू द स्टूडेंट्स, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हों या फिर कोई इंफॉर्मेशन जो आप अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहें?
निशी, ये सेशन बहुत इंटरेक्टिव था और बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने बात की है। हमने मतलब क्या क्या कोर्सेज पढ़ने हैं, क्या पढ़ना चाहिए, अपना करियर अगर डेटा साइंस में या डेटा एज ए डेटा एनालिस्ट बनाना है तो क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स पर हमको फोकस करना है, वो सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। और जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अगर आपको अपना स्पेशलाइजेशन लेना है, जैसे फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है तो फाइनेंशियल एनालिस्ट की क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या काम करते हो आप, वो मैंने आपको बताया। अगर आप अपना ऑपरेशंस एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो किस तरीके का आपको काम करना होता है, वो सब हमने बताया आपको। तो ओवरऑल मैंने, मुझे लगता है कि हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। और आईएमटी सीरियल के बारे में भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा बिजनेस एनालिटिक्स एंड आईटी में बहुत रीजनेबल फी में कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो दोज हु वांट टू मेक देयर करियर इन दिस फील्ड दे कैन go ahead, or even if you are pursuing some career and want to change, because बाकी के अगर एरियाज डोमेन्स देखते हैं, नॉट ऑल बट जैसे बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स जिनकी डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, सिविल इंजीनियरिंग में है, वो लोग भी डेटा साइंस में आना चाहते हैं क्योंकि डेटा साइंस में सैलरी पैकेजेस बहुत हाई हैं। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस है। अब जितना बिजनेस बढ़ाओगे, जितना रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे, कंपनी आपको उतना हाइक देगी। तो इसलिए यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली ट्रेडिशनल कोर्सेज हम देखते हैं कि लोग प्रेफर करते हैं डॉक्टर बनना, कि अगर कोई डॉक्टर बन गया तो थ्रू आउट हिज लाइफ ही इज गोइंग टू अर्न। बट अब चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। आप डेटा एनालिटिक्स में अपना करियर बनाते हैं तो फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ यू आर गोइंग टू अर्न अ लॉट। डॉक्टर को स्टैब्लिश होने में बहुत टाइम लगता है, उनको 30 इयर्स तक की एज तक तो आपको उनको पढ़ाई करनी है, उसके बाद उनका करियर स्टार्ट होता है। तो एक प्रॉपर डॉक्टर जो बनता है वो 40-45 इयर्स की एज के बाद वो प्रॉपर कमाना शुरू करता है। बट डेटा एनालिटिक्स में आप अपना बैचलर्स कंप्लीट करिए और उसके बाद सीधे आप अपना डिप्लोमा करिए और उसके बाद आपका फ्यूचर ब्राइट है, यू आर अर्निंग अ लॉट। तो जो लोग भी अपना एक लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, अपनी एक सोसाइटी में वैल्यू बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए डेटा, और ऑफ कोर्स मेहनत तो है, आपको थोड़ा अपना लर्निंग मोड रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, टीम वर्क की क्वालिटी होनी चाहिए आप में, कोलैबोरेशन करने की क्वालिटी होनी चाहिए, हर समय कुछ ना कुछ क्यूरियस रहना पड़ेगा आपको। देन ओनली यू कैन डू these kind of, I mean, you can grow your career in this field. सो आई लास्टली मैं ये सेशन एंड होने वाला है, लेकिन एंड करने से पहले जो भी पार्टिसिपेंट्स अभी हैं, अगर कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेरी अभी भी पूछना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैसेज में लिख सकते हैं, आंसर कर देंगी मैम। और जाते जाते मैम मैं आपसे खुद ही ये चीज पूछना चाहती हूँ, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन है। एज आई सी, मैंने खुद देखा कि पहले डेटा की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, मतलब पढ़ती थी लेकिन बहुत ही मिनिमम टाइप की पढ़ती थी, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, ये जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि एकदम से जो मार्केट में डिमांड है डेटा की, वो इस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है। तो आप बहुत एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने पीएचडी डिग्री होल्ड की है, आप चीजें लगातार देख रही हैं, यू आर अपडेटेड ऑल्सो। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? तो इसके लिए निशी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, कारण सिंपल है कि डेटा एनालिसिस हम पहले भी करते थे, बट हाँ। जब पहले के टाइम में डेटा बहुत कम होता था क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी कम थी। आप डेटा को पेपर्स में सेव करके रखते थे। ठीक है, तो उस समय एग्जैक्टली। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी कम होने की वजह से हर कोई डेटा एनालिसिस नहीं करता था। ओनली एक्सपर्ट लोग करते थे, जो उस डोमेन के, जो स्टैटिशियंस हैं, मैथमेटिशियंस हैं, वो लोग ही करते थे। बट जैसे जैसे आपका स्टोरेज कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स में बूम आया और जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो डेवलप हुई। अगर आप बात करेंगे, सबसे पहली जो हार्ड डिस्क बनी थी, उस हार्ड डिस्क का साइज एक टेबल के बराबर होता था। बट आज जो आप देख रहे हो हार्ड डिस्क कितनी छोटी हो गई है साइज में। पेन ड्राइव का आप एग्जांपल देख सकते हो, पेन ड्राइव कितनी छोटी है एंड इट इज एबल टू सेव टेराबाइट्स ऑफ डेटा। वो सब एग्जैक्टली। भी अगर हम छोड़ देते हैं, हम सीधे क्लाउड की बात करते हैं, तो आपका
कोई भी जो वन ड्राइव हो गया या गूगल ड्राइव हो गया, आपको इतना सारा स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है। अभी गूगल ड्राइव में तो अब 1 साल से वो चार्जेबल हो गया आफ्टर सर्टेन लिमिट, बट पहले वो फ्री ऑफ कॉस्ट था क्योंकि अब ज्यादा लोग यूज करने लग गए हैं। तो डेटा का स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ने की वजह से डेटा की अवेलेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, आप खुद देखिए, जैसे जब इंडिया में रिलायंस का जो जियो का से पहले अगर हम देखते हैं, तो एक मूवी डाउनलोड करना या एक ऑनलाइन मूवी देखना कितना डिफिकल्ट होता था। बट एग्जैक्टली। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, तो अभी आप नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, कितना सारा हम डेटा अवेलेबल है। आप कितने वीडियोस दिन भर में बनाते हैं, अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं। यूट्यूब फैमिली कितनी वास्ट हो गई है। तो ये सब चीजें जो हम आजकल शॉर्ट्स और रील्स का जो फैशन है, ट्रेंड है, वो सब इसीलिए है क्योंकि डेटा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई है। बट अगर हम किसी चीज को स्टोर करते रहते हैं और यूज नहीं कर रहे हैं, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। तो अब क्या एग्जैक्टली। है कि कंपनीज everywhere in the globe, they are looking for people who are able to find out useful information from the data। डेटा से इंसाइट जो निकाल सके, ऐसे लोगों की डिमांड बढ़ गई है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स से भी बात करेंगे, उन लोगों के टाइम में डेटा नहीं होता था, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट, ये सारे वर्ड्स नहीं होते थे, उनके लिए एग्जैक्टली। ये टर्म्स न्यू हैं। बट आप इस एरा में है जहाँ जो फ्यूल है वो डेटा है। आज की डेट में अगर किसी के पास पैसा है, पावर है, तो ही इज नॉट रिच। पर्सन हु इज हैविंग डेटा इज रिच एक्चुअली। ओके डेटा है मैम, तो आप मैंने अपनी पूरी कुंडली निकाल सकते हो। exactly, I seen my parents asking me to write everything and keeping it everything in written, and I seen that time also कि जब हम 1 GB डेटा को कैसे पूरा यूज करते थे महीने भर के लिए, मतलब we used to only switch on our mobile data when we have to download, और बहुत सोच समझ के कोई वीडियो डाउनलोड करते थे। and now I have seen that time also, I'm going through that time कि हम 1.5 GB डेटा भी पता नहीं कैसे खर्च हो जाता है, एक दिन के अंदर हम उस डेटा को खत्म कर देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत अच्छे से हर डिटेल, हर क्वेश्चन को स्टूडेंट्स को समझाया, वेरी विद वेरी गुड एग्जांपल्स। एंड आई वुड लाइक टू थैंक अशोक सर ऑल्सो, जो इस पूरे सेशन में रहे, राकेश जी जिन्होंने लगातार बच्चों के जवाब देते रहे कमेंट सेक्शन में। एंड आई वुड नाउ आस्क स्टूडेंट्स ऑल्सो कि अगर आपको कुछ भी क्वेरीज या कुछ भी इंफॉर्मेशन IMT CDL गाजियाबाद से रिलेटेड चाहिए, तो यू शुड गो टू देयर वेबसाइट, यू कैन विजिट देयर वेबसाइट एंड आस्क योर क्वेरी देयर ऑल्सो। और ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशंस हम लगातार IMT CDL गाजियाबाद के साथ करते रहेंगे, गेस्ट बदलेंगे, और हम चाहते हैं कि हमारा ये सेशन इतना अच्छा रहे कि हमको मैम को एक बार फिर से बुलाना पड़े। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, एंड आई वुड नाउ आस्क, and now I would like to end this session. Thank you everybody for being here. Thank you so much. So I also want to give thanks to all the participants। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे, और ऐसे ही आप आगे भी फ्यूचर में कनेक्ट रह सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, और IMT CDL टीम से भी आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका फ्यूचर में डाउट है, तो वी आर वेरी हैप्पी टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज। थैंक Thank यू you. Thank you all. ऑल।